Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer in economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana District, Fazilka. So I welcome you all in this lecture of economics. So in the last lecture, we are discussing about the relation between the elasticity of demand and the slope of demand curve. In that, we have made two diagrams in which the elasticity is less but the slope is more. In the second case, the elasticity is more but the slope is less. Now we compare the elasticity and slope of all these 5 degrees of price elasticity of demand. So according to the method of price elasticity of demand, the price elasticity of demand is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. So as I already told you कि ये जो formula है, there are only 5 possible answers of this formula and the 5 possible answers are shown in these 5 diagrams, like it can be 0, less than 1, equal to 1, greater than 1 and infinity. Okay, so first we move to this. When elasticity is 0, why it's 0? Because there is a percentage change in price. The denominator shows some value. यहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू है, but the demand doesn't change any जो है. अब क्या होगा देखिए, अब डिमांड कर्व doesn't show any stretchability or flexibility. अब डिमांड कर्व जब फ्लेक्सिबल है ही नहीं, डिमांड कर्व अपनी जगह पे बिल्कुल स्टिक हो गई है, तो डिमांड में तो चेंज आना ही नहीं. हमने इलास्टिसिटी के अंदर जो है वो मेजर करना होता है चेंज इन डिमांड, पर जब डिमांड वहीं पे स्टिक है तो चेंज है ही नहीं. डिमांड जो है वो OQ की OQ पे फिक्स है, तो इसका मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया 0. So percentage change in price, there is something value, so 0 divided by something, answer is 0. But now if we calculate the slope is vertical divided by horizontal. So if we are at the point P and we move from P to P1, the horizontal and the vertical distances, now the vertical distance is delta P. What's the horizontal distance? Nothing, 0. So delta P divided by 0. So in that case slope is infinity. Vertical divided by horizontal. Vertical कितना है? Delta P. तो delta P divided by horizontal. Horizontal तो है ही नहीं. Horizontal नहीं तो क्या हो जाएगा? 0. Because slope is equal to vertical upon horizontal. ठीक है, तो वर्टिकल तो डेल्टा P है हमारे पास और हॉरिजॉन्टल नहीं है. समथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो आंसर कितना आएगा? इन्फिनिटी. व्हेन द इलास्टिसिटी इज 0, स्लोप इज इन्फिनिटी. नाउ कम्स टू दिस. अब यहाँ पे क्या है? इलास्टिसिटी कितनी है? इन्फिनिटी. इफ वी वांट टू मेजर द स्लोप, सो व्हाट्स द फार्मूला? वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल. व्हाट्स द वर्टिकल डिस्टेंस? अब हम तो P पे फिक्स है, P तो चेंज हो ही नहीं रहा. अब देखो पहले तो स्लोप जो है उससे पहले इलास्टिसिटी चेक करते हैं. देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, Q से Q1, Q से Q2 चेंज हो रहा है. परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो ही नहीं रहा, तो चेंज कितना हो गया? 0 समथिंग डिवाइडेड बाय 0, आंसर इन्फिनिटी. सो द इलास्टिसिटी वैल्यू इज इन्फिनिटी. नाउ कम्स टू दिस स्लोप. वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल तो है ही नहीं क्योंकि हम तो P से चेंज ही नहीं हो रहे. सो अब वर्टिकल डिस्टेंस नहीं है, मतलब कितना हो गया? 0. हॉरिजॉन्टल कितना है? डेल्टा Q है. सो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज 0. सो इन दिस केस slope is equal to 0. So when elasticity is 0, slope is infinity. When slope is 0, elasticity is infinity. Now comes to this. Here the elasticity value is less than 1. Why? Because the percentage change in quantity demanded is this of amount. ये वाला इतना सा. ठीक? So percentage change in quantity demanded कम है, percentage change in price ज्यादा है. तो ये जो न्यूमरेटर है ये क्या होगा? छोटा. डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा. स्मॉलर वैल्यू डिवाइडेड बाय बिगर वैल्यू, आंसर इज लेस देन 1. सो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. नाउ कम्स टू स्लोप. नाउ वर्टिकल डिस्टेंस इज दिस delta P. The horizontal distance is this delta Q. So delta P divided by delta Q, larger segment divided by smaller segment, so answer is more. So here the slope is high. तो हायर स्लोप है, ज्यादा है इसकी स्लोप. वैसे भी चेक कीजिए, अगर किसी बच्चे को ऊपर बिठाओ तो जूम करके नीचे आएगा, तो
स्लोप क्या है, ज्यादा है। इस केस में आ जाइए, अब यहाँ पे इलास्टिसिटी चेक कीजिए, प्राइस में चेंज, डिमांड में चेंज, सेम, सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, इलास्टिसिटी 1, तो इसमें क्या होगा, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, so vertical upon horizontal same, so slope is equal to 1, तो इसमें स्लोप क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। अगर इलास्टिसिटी 1 है तो स्लोप भी कितनी होगी, 1। अब इधर चेक कीजिए, यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, why, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज दिस, ओके, सो दिस डिवाइडेड बाय this, so percentage change in quantity demanded is more than the percentage change in price, so the numerator is more, denominator is less, so more divided by less, answer greater than 1। if we talk about the slope as देखिए vertical divided by horizontal, this is delta p, this is delta q, so delta p divided by delta q, स्मॉलर अमाउंट डिवाइडेड बाय लार्जर अमाउंट, तो स्लोप क्या होगी, यहाँ पे लेस होगी। तो स्लोप का और इलास्टिसिटी का क्या होता है, आपस के अंदर इनवर्स रिलेशन जो है वो हुआ करता है। तो हमने इन डायग्राम के अंदर उस चीज को जो है वो प्रूव कर दिया। ओके, नाउ कम्स टू अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हमने डिमांड से पहले थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था तो उसके अंदर हमने बात की थी फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। नाउ वी कम्स टू फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में अब हम ना दो चीजें कहेंगे। अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स affecting elasticity of demand, specifically price elasticity of demand, उसको देखना है। ठीक है, कि price elasticity of demand जो है वो 0 है, less than 1 है, equal to 1 है, greater than 1 है कि infinity है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर कितना आएगा, तो हम एक एक करके बात करेंगे। देखिए, अगर तो प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में चेंज उससे ज्यादा आता है, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ओके, मींस प्राइस चेक करते हैं। चलो ऐसे नहीं करते, फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो हमारे पास है, माइनस लगाया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, सो अगर तो इसका आंसर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। अगर आंसर लेस देन 1 है तो क्या होगा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। अगर आंसर इक्वल टू 1 है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर सेम। अगर आंसर 0 है तो न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आंसर इंफिनिटी है तो न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 0। तो ऐसे 5 डिग्रीज बनेगी। अगर तो इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो आता है ग्रेटर देन 1, तो मैं बोलूंगा डिमांड इज इलास्टिक। और अगर आंसर आता है लेस देन 1 तो मैं बोलूंगा डिमांड इज इनइलास्टिक। तो हम दो तरह से इसको मेजर करेंगे। हमें सारी डिग्रीज बताने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ इतना बताना है कि जो डिमांड है वो इलास्टिक है, मतलब वो चेंज हो रही है, या इनइलास्टिक है, चेंज नहीं हो रही। अगर तो डिमांड थोड़ी सी ही चेंज होगी, बिल्कुल थोड़ी सी, मतलब या तो आंसर 0 होगा या क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो हम उसको डाल देंगे इनइलास्टिक डिमांड में भी। जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, उसमें इतनी इलास्टिसिटी नहीं है, उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बट अगर आंसर ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो हम बोलेंगे डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आंसर इक्वल टू 1 आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये यूनिटरी इलास्टिक है, आंसर 1 है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये बताएंगे कि जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इनइलास्टिक है, इलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है, हम उन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जिनमें जो पहला फैक्टर आता है वो आता है हमारे पास नेचर ऑफ द कम्युनिटी। मतलब देखिए, जितनी भी कम्युनिटीज होती है वो सारी की सारी कम्युनिटीज एक जैसी नहीं होती।
हर कमोडिटी की नेचर डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे आप सोच के देखो, जो फर्स्ट केस हो सकता है वो हो सकती है नेसेसिटीज, ठीक है। अब नेसेसिटीज में क्या होगा, नेसेसिटीज के केस में अब वो तो हमें जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए। अगर सॉल्ट का प्राइस कम भी हो जाएगा तो मैं सॉल्ट ज्यादा नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। सॉल्ट महंगा हो जाएगा तो मैं सॉल्ट कम नहीं खाऊंगा, मैंने सॉल्ट उतना नहीं खाना है। तो क्या होगा, सॉल्ट का प्राइस चेंज हो रहा है पर क्या सॉल्ट की डिमांड चेंज होगी, नहीं ना। तो डिमांड में चेंज कितना आएगा, जीरो। तो इसका मतलब समथिंग यहाँ पे कितना होगा, जीरो। तो जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज जीरो। तो अगर तो कमोडिटीज नेसेसिटीज हैं, तो नेसेसिटीज की हमने जितनी डिमांड करनी होती है उतनी ही करनी होती है, हम उसकी डिमांड को चेंज नहीं करते। मतलब डिमांड चेंज नहीं होगी, डिमांड में इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। तो इस केस में जो इलास्टिसिटी का आंसर होगा वो कितना होगा, जीरो। नंबर 2, अब कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं कंफर्ट्स। कंफर्ट्स क्या है, ये नॉर्मल गुड्स होती हैं। नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, जितना वो प्राइस चेंज होगा उतनी हम डिमांड भी चेंज कर लेंगे। मतलब जितना न्यूमिनेटर उतना ही डिनोमिनेटर, मतलब जितना प्राइस चेंज हुआ डिनोमिनेटर में जितना आया हमने डिमांड उतनी को चेंज कर लेनी है। तो क्या होगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम रहेंगे। तो कंफर्ट के केस में इलास्टिसिटी कितनी होगी, 1। थर्ड जो टाइप आती है दैट इज कॉल्ड लग्जरीज, ठीक है। जो लग्जरीज हैं वो उनको हम डालते हैं जो बहुत कॉस्टली चीजें होती हैं, जो हम डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। अब जब हमने पॉइंट मेथड किया था उसके अंदर हमने बात की थी कि जो कमोडिटीज हाई प्राइस की होती है, मतलब जैसे जैसे हम डिमांड कर्व में ऊपर की तरफ जा रहे थे क्या हो रहा था, प्राइस बढ़ रहा था। पॉइंट मेथड में मैंने जब ये कराया भी था, तो पॉइंट मेथड में प्राइस जो है वो बढ़ रहा था, साथ के साथ इलास्टिसिटी भी बढ़ रही थी। तो लग्जरीज कोई छोटी मोटी चीजें तो होंगी नहीं, कोई सस्ती चीजें तो होंगी नहीं। तो क्या होगा, लग्जरीज बहुत महंगी चीजें होंगी, मतलब हम डिमांड कर्व में बहुत ऊपर वाले सेगमेंट में बैठे होंगे। अगर बहुत ऊपर वाले सेगमेंट में बैठे होंगे तो वहां पर इलास्टिसिटी जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगी। अब तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। अगर तो नेसेसिटीज हैं तो उतनी जिनकी हमने डिमांड करनी है उतनी ही करनी है, हम डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो डिमांड में चेंज आएगा ही नहीं, तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। और क्या होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक होगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर कंफर्ट्स हैं तो ठीक ठाक चेंज होंगी, जितना प्राइस चेंज होगा अप्रोक्सीमेटली उतनी ही डिमांड चेंज हो जाएगी। दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज होंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर हमारा इलास्टिसिटी का 1 आएगा। मतलब जो कंफर्ट्स होंगे उनकी जो डिमांड होगी वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है वो होगी। अगर हम लग्जरीज की बात करें उस केस में क्या होगा, जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा चेंज होगी जब उसका प्राइस चेंज होगा। जैसे अगर सोचो कि प्राइस कम हो जाए तो क्या होगा, अब जो लग्जरीज है वो तो डेमोन्स्ट्रेटिव गुड्स है, वो तो दिखावे की चीजें हैं। अब जब प्राइस ही कम हो गया तो वो तो डेमोन्स्ट्रेटिव गुड रहेगी नहीं, वो तो दिखावे के काम आएगी नहीं, तो फिर उसको क्यों यूज करेंगे। तो उस केस में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा उसका, ग्रेटर देन 1 जो है वो रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर दैट द नेचर ऑफ द कमोडिटी दैट इन्फ्लुएंसेस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। नंबर 2 हम बात कर सकते हैं उसमें डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जो कमोडिटी है उसके कितने यूजेस हैं। सपोज करो कि आप अपने घर पे मिल्क यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मिल्क के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे आप मिल्क को टी के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसको शेक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसको डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए मतलब सीधा ही पीने के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसको कर्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसको बटर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसको घी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक हो क्या। अब सोचोगे अगर 1 2 3 4 5 6 तो मिल्क के हम 6 यूजेस माने। For every use, if you need 1 kg of milk, so आप डेली 6 kg of milk की डिमांड जो है वो कर रहे हैं। सपोज करो प्रेजेंट में ये हालात चल रहे हैं, मिल्क जो है वो महंगा हो गया, यानी अब क्या होगा, प्राइस में चेंज किसमें आएगा, प्लस में। मिल्क महंगा हो गया, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया अब तो मिल्क हो गया महंगा,
अब क्या करते हैं, मिल्क को ना हम शेक बनाने के लिए यूज नहीं करते, रहने दो, ठीक है, कर्ड बनाने के लिए भी यूज नहीं करते, बटर के लिए भी यूज नहीं करते, घी के लिए भी यूज नहीं करते, रहने दो। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चाय बनाने के लिए और डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए ही मिल्क यूज करेंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों के लिए आपको मिल्क कितना चाहिए, 2 kg, पहले कितना खरीद रहे थे 6 kg, अब आ गए 2 kg पे, मतलब मिल्क महंगा हुआ, प्राइस बढ़ा, तो आपने मिल्क की डिमांड कम करा दी, ठीक है। आप 6 kg से 2 kg पे आ गए, मतलब प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड चेंज हुई, तो मैं बोलूंगा इलास्टिक, ठीक है। अब सोचो भी, अब आप ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि मिल्क के टोटली 6 यूजेस थे, तो आपने 6 यूजेस में से 4 यूजेस बंद कर दिए और सिर्फ 2 यूजेस पे आ गए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने डिमांड करनी शुरू कर दी। 6 यूजेस के लिए 6 kg, 2 यूजेस के लिए 2 kg, तो डिमांड आपकी कम हो गई। पर सोचो अगर कोई ऐसी चीज है जिसका पहले से ही एक ही यूज है और कोई है ही नहीं, तो अगर बहुत सारे यूजेस होंगे तो मैं कुछ यूज बंद कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली डिमांड में कम करा लूंगा। पर अगर कोई ऐसी चीज यूज कर रहा हूं जिसका एक ही यूज है, अब उसको क्या बंद करूंगा, तो उस केस में डिमांड चेंज नहीं हो पाएगी, तो इलास्टिसिटी का आंसर क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। रिपीट माय वर्ड्स, अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं, प्राइस राइज कर जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो उसके नॉन एसेंशियल यूजेस होंगे हम उनको बंद कर देंगे, तो डिमांड हम कम करा सकेंगे। डिमांड कम करा सकेंगे मतलब डिमांड में चेंज ला सकेंगे, डिमांड में चेंज आएगा मतलब डिमांड इलास्टिक होगी। पर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसका ऑलरेडी एक ही यूज है, अब उसको क्या बंद करोगे, अब 5 से कम करके तो 1 पे आ गए, पर 1 से कम करके कहां पे जाओगे, तो आपको वो चीज बिल्कुल ही छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर एक ही यूज है तो उसको बंद करना पॉसिबल नहीं होगा, तो डिमांड जो है वो लेस इलास्टिक जो है वो होगी। नंबर 3 हम ले सकते हैं, इसमें और इजी कर देते हैं इसको हम लिखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है। अब सोचो कि आप ना एक ऐसी कमोडिटी यूज कर रहे हो जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं, मतलब जो चीज आप यूज कर रहे हो उसकी जगह पे यूज होने वाली कोई भी चीज मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है ही नहीं, वो अकेली चीज है। अब जो उसका प्रोड्यूसर है उसको पता है कि जो चीज मैं बेच रहा हूं इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लोग इसकी जगह पे कोई और चीज यूज नहीं कर सकते। उसने क्या किया, उसने प्राइस बढ़ा दिया, अब क्या होगा, अब प्राइस बढ़ा दिया, अब अगर तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते तो आपका अपर हैंड रहता। आप क्या कहते हैं एज ए कंज्यूमर भी, अगर यू एज अ प्रोड्यूसर अगर तुमने प्राइस चेंज किया, हम तेरी कमोडिटी की डिमांड कम कर देंगे, सोच ले, क्योंकि तेरी जगह पे यूज होने वाली और बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, देख ले, अगर तुमने थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ा दिया ना, तेरी डिमांड कम करा देनी है, तो इलास्टिसिटी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1, क्यों, बिकॉज वी हैव द ऑप्शंस कि अगर तूने प्राइस बढ़ाया तो तेरी जगह, तेरी कमोडिटी की जगह पे यूज होने वाली और बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, हमने तेरी कमोडिटी को खरीदना बंद कर देना, तो उन कमोडिटी को खरीद लेंगे, तो तेरी कमोडिटी की डिमांड गई, तो इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज करा पाएंगे। अब जो चीज वो बना रहा है प्रोड्यूसर, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, अब वो हमें धमकी देगा, वो कहेगा देखो प्राइस बढ़ाने लगा हूं, ठीक है, आप चाहो तो मेरी बनाई हुई कमोडिटी की जगह पे दूसरी कमोडिटी यूज कर सकते हो। अब आप कहां से यूज करोगे जब है ही नहीं मार्केट के अंदर, तो वो रेट जितना मर्जी बढ़ा ले, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, आपको उसकी चीज परचेज करनी ही पड़ेगी, मतलब आप डिमांड में चेंज नहीं ला सकते। तो आंसर क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का रेट जितना मर्जी बढ़ जाए, सोच के देखो क्या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड उतनी कम हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का ऑप्शन क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं, ठीक है, हम जितना मर्जी सोलर यूज कर लें और जितना मर्जी हम कुछ और ऑप्शंस ले लें, पर इलेक्ट्रिसिटी से बेटर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वो जितना मर्जी रेट बढ़ा ले, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको उसकी डिमांड करनी ही पड़ेगी। तो
इलेक्ट्रिसिटी के केसेस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो लेस देन 1 रहेगी। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बहुत ज्यादा भी बढ़ गए तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कोई ज्यादा कम नहीं होगी, तो न्यूमरेटर कम रहेगा, डिनोमिनेटर ज्यादा रहेगा, तो आंसर लेस देन 1 आएगा। अब यही चीज मान लो किसी लक्स के 100 बनाने वाले ने की होती, लक्स के नए वाले ने उसका 100 का प्राइस बढ़ा दिया होता, तो यू हैव हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शन, तो आप क्या करते हैं, लक्स खरीदते नहीं, कोई और खरीद लेते, ठीक है ना। तो क्या होगा, उस केस में डिमांड कम होगी। अगर तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है देन यू कैन मूव टू अनदर कमोडिटी, तो आप पहली कमोडिटी की डिमांड कम करा सकते हैं, तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। इफ यू हैव नो अदर ऑप्शन तो आपको उसी की कंजम्पशन ही करनी पड़ेगी। सो प्राइस चेंज होने पर भी डिमांड चेंज नहीं होगी। सो आंसर जो है वो इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक जो है वो रहेगा। नंबर 4 पे हम ले सकते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अब टाइम पीरियड भी इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है। टाइम पीरियड में क्या होता है, देखो हम टाइम पीरियड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड और दूसरा हम लेते हैं लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब बहुत कम टाइम, लॉन्ग पीरियड मतलब बहुत ज्यादा टाइम। अब क्या होता है, किसी एक कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया, ठीक है। अब शॉर्ट रन में हर एक कंज्यूमर ना किसी चीज का हैबिचुअल होता है, और शॉर्ट रन के अंदर उस हैबिट को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होगा, अगर रेट ज्यादा भी हो जाएंगे तो हैबिचुअल है उस चीज का, तो उसको छोड़ नहीं पाएगा। अब प्राइस चेंज होगा, वो डिमांड चेंज कर नहीं पाएगा, इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। पर लॉन्ग रन में क्या होता है, हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं बिकॉज वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम विद अस। तो अगर प्राइस चेंज होगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी हैबिट्स को चेंज कर लेंगे। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, अगर प्राइस चेंज होगा तो हम इस ऑप्शन में होंगे कि हम डिमांड को चेंज करा सकें, तो डिमांड क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। हम इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जो स्मोकर्स होते हैं, जो हम चेन स्मोकर्स बोलते हैं, अगर सिगरेट के रेट बढ़ भी जाते हैं, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, पीछे गवर्नमेंट ने सिगरेट के रेट बहुत बढ़ा दिए, क्यों बढ़ाए, ये सोच के कि लोग जो है वो सिगरेट की डिमांड कम करेंगे, बट दिस इज अ लॉन्ग रन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों, देखो जो पर्सन चेन स्मोकर है, अब एक सिगरेट का पैकेट अगर मान लो उसको 50 रुपीस में मिलता है, आपने प्राइस उसका 100 रुपी कर दिया, 50 to 100, आपने सीधा 100% प्राइसेस बढ़ा दिए। आप क्या सोचेंगे, वो सिगरेट की डिमांड कम कर देगा, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो चेन स्मोकर है। पर धीरे धीरे वो क्या करेगा, अपनी सिगरेट की जो कंजम्पशन है उसको कम करता रहेगा, तो लॉन्ग रन के अंदर वो उसकी डिमांड चेंज कर पाएगा, शॉर्ट रन में नहीं कर पाएगा। वैसे ही जो अल्कोहलिस्ट होते हैं, जो जिनको ड्रंकर्ड जिसको हम बोलते हैं, अगर ड्रिंक जो अल्कोहल है उसका प्राइस बहुत ज्यादा भी बढ़ जाएगा, वो उसकी डिमांड कम नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर हैबिचुअल ऑफ दैट, ठीक है। तो अगर लॉन्ग रन में भी रेट ज्यादा रहेंगे, अब उनको लगेगा कि नहीं, अल्कोहल हम यूज करते हैं, उसके ऊपर हमारे बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसकी डिमांड थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। तो लॉन्ग रन के अंदर जाके वो उसकी डिमांड चेंज करा पाएंगे, शॉर्ट रन के अंदर डिमांड जो है वो नहीं चेंज होगी। नंबर 5 हम ले सकते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। अब इनकम में ना हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ना इनकम के बेसिस पे जितने भी कंज्यूमर हैं हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम लेंगे पुअर, नंबर 2 हम लेंगे मिडिल क्लास, और नंबर 3 हम लेंगे रिच। तो 3 तरह के लोग होते हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम। अब पुअर और रिच दोनों के केसेस में जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1 होगी। अब आप सोचेंगे कि पुअर के केस में तो चलो माना सो माना, रिच के केस में कैसे होगा। अब दिमाग लगाइए, जरा सोचिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर का मतलब क्या है कि पुअर है, इनकम बहुत कम, तो अगर उसकी इनकम बहुत कम है तभी तो वो पुअर है ना। अगर इनकम ज्यादा होती तो वो पुअर क्यों होता। अब इनकम बहुत कम है तो वो पुअर है, तो उतनी ही चीजें खरीद रहा होगा जितनी उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी होंगी। मतलब जो पुअर पीपल हैं उनकी कंजम्पशन जो होती है ना वो इतनी कम होती है कि अगर उसने उससे भी कम किया तो वो मर जाएगा। मतलब वो पहले ही इतनी डिमांड कर रहा है, अब उसको वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने उससे भी डिमांड को कम किया तो वो मर जाएगा। तो अब वो तो डिमांड चेंज करा नहीं पाएगा, मतलब डिमांड में चेंज नहीं आएगा तो इनइलास्टिक।
जो रिच पीपल है उसके पास इतने पैसे हैं, वो कहता प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं। तो अगर प्राइस बहुत ज्यादा भी बढ़ जाएगा तो उसको पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी डिमांड चेंज नहीं कराएगा। अगर मैं ये कहूं कि मार्केट के अंदर अगर आप ये सोचें कि गोभी जो है वो अगर 50 रुपए किलो से 100 रुपए किलो हो जाएगी तो मुकेश अंबानी ना गोभी की डिमांड कम नहीं करेगा। वो ये नहीं सोचेगा गोभी जो है वो 50 रुपए किलो से 100 रुपए किलो हो गई है तो मेरे तो प्राइस बहुत बढ़ गया तो मुझे ना गोभी पहले से कम खानी चाहिए। अब उसके पास इतने पैसे हैं कि अगर गोभी 50 रुपए किलो की बजाय 5000 रुपए किलो भी बिकेगी ना तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो वो डिमांड कम नहीं करेगा। तो ना तो पुअर डिमांड कम करेगा ना रिच डिमांड कम करेगा। पुअर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो कर नहीं सकता। रिच उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों केसेस में जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1 होगी, पर जो मिडिल इनकम पीपल होते हैं उनके केस में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि इनके पास इतनी कम इनकम भी नहीं होती और इतनी ज्यादा भी नहीं होती, तो ये मिडिल में बैठे होते हैं। इनके ऊपर जो प्राइस चेंजेस होते हैं उनका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। तो मिडिल के केस के अंदर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी, पुअर और रिच के अंदर इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। उसके बाद हम इसमें ले सकते हैं proportion of income spent on a commodity, मतलब एक जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन उस कमोडिटी पे खर्च करता है। ठीक है, सपोज करो कि मैं कहूं कि मेरे घर पे मैच बॉक्स आता है, एक महीने के अंदर एक मैच बॉक्स लगता है। ठीक, तो अब एक मैच बॉक्स आता है 2 रुपीस का। ठीक, तो मैं एक महीने में अगर मैं बोलूं कि मेरी सैलरी जो है वो 50,000 पर मंथ है तो 50,000 में से मैच बॉक्स के ऊपर मैं पर मंथ 2 रुपीस का खर्च कर रहा हूं। क्लियर होगा? अब अगर मान लो 2 रुपीस की बजाय 3 रुपीस का हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि सोचो 2 रुपीस से 3 रुपीस का हो गया, प्राइस 50% बढ़ गया, पर उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एक्चुअली उसके ऊपर मैं अपनी इनकम का इतना छोटा सेगमेंट खर्च कर रहा हूं कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, पर अगर कोई कमोडिटी ऐसी है जिसके ऊपर मैं अपनी इनकम का एक लार्जर सेगमेंट खर्च कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक चीज ऐसी है इसके ऊपर मैं 50,000 में से 25,000 खर्च कर रहा हूं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माय इनकम, लाइक रेंट ऑफ माय हाउस। मालूम है कि जिस घर में मैं रहता हूं उसका रेंट जो है वो 15,000 पर मंथ है, तो 50,000 50 में से 15,015 मेरे रेंट में जाता है। अगर मेरा जो लैंडलॉर्ड है उसने रेंट मेरा 15,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया ना, मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है उसके ऊपर खर्च कर रहा था, तो उस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। पर अगर किसी कमोडिटी पे मैं अपनी इनकम का बहुत स्मॉलर सेगमेंट खर्च कर रहा हूं तो उस केस में जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी? वो कम होने वाली है। उसके बाद हम इलास्टिसिटी को कोरिलेट कर सकते हैं विद द प्राइस लेवल। ठीक है, भी वो जो कमोडिटी है उसका प्राइस कितना है, ये हमने ऑलरेडी पॉइंट मेथड के अंदर जो है वो डिस्कस किया था कि जो कमोडिटीज कॉस्टली होती हैं उनके केस में हम y एक्सिस में ऊपर की तरफ होते हैं तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है। अपर सेगमेंट क्या होता है? कम होता है। तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, आंसर क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो अगर जो कमोडिटीज कॉस्टली हैं तो उनके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो भी उसी प्रोपोर्शन के अंदर आएंगे। जैसे अब मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कोई चीज जो है वो 50,000 की है, 50,000 वाली चीज 10% महंगी हो गई तो 50,000 का 10% मतलब 5,000 हो जाएगी 55,000 की। और अगर एक चीज 50 रुपीस की है वो 10% महंगी होती है तो कितने आएगा? 5 रुपीस। अब सोचो दोनों में 10% चेंज आया है, पर एक 5 रुपीस बढ़ी है, एक 5,000 रुपीस बढ़ी है। तो जो 5,000 रुपीस बढ़ेगी ना उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। ठीक हो गया? तो जो कमोडिटीज कॉस्टली होती हैं उनमें चेंज भी ज्यादा आता है तो उनके प्राइस भी ज्यादा चेंज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली डिमांड भी ज्यादा चेंज होगी। तो कॉस्टली चीजों के केस में इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, सस्ती चीजों के केस में इलास्टिसिटी
जो है वो कम होगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं यू कैन यूज द पॉइंट मेथड और द ज्योमेट्रिक मेथड। उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे डिमांड कम है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहा है, तो उस केस में इलास्टिसिटी जो है वो भी बढ़ रही है। उसके बाद जो फैक्टर इलास्टिसिटी को अफेक्ट करता है वो है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अब अगर सोच के देखो कि अगर जैसे मैंने इस केस में बात की थी टाइम पीरियड में, अब इसी को इसके साथ जो है वो हम कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर इसमें देखिए कि अब इसके चक्कर में अगर सपोज करो कि एक कम्युनिटी जो है उसकी एक कंज्यूमर को हैबिट है, ठीक है, एक कंज्यूमर हैबिचुअल है उस चीज का, अब उसकी वो कंजम्पशन छोड़ नहीं सकता, तो प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए वो उसकी हैबिट को छोड़ नहीं सकता, तो प्राइस में अगर चेंज आएगा तो डिमांड में चेंज नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा, अब डिमांड में चेंज आ रहा नहीं, प्राइस में चेंज आ गया, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, आंसर इज 0। तो जिन कम्युनिटीज की एक कंज्यूमर को हैबिट होती है उस केस में इलास्टिसिटी जो है वो या तो इनइलास्टिक होगी या फिर वो लेस देन 1 होगी। पर सोचो अगर ऐसी चीजें भी होती हैं जिनकी हमें हैबिट नहीं होती, अब जिनकी हमें हैबिट नहीं होती क्या होगा, अब मुझे एक चीज की हैबिट नहीं थी, ठीक है, उसका रेट महंगा हो गया, मैं कहूंगा कोई बात नहीं, मुझे कौन सा हैबिट है उस चीज की, अगर उसका रेट बढ़ गया है तो उसकी डिमांड कम कर दूंगा, तो उस केस में जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी, वो लेस देन 1 होगी। नंबर 9, इसमें हम ले सकते हैं पोस्टपोनेंट ऑफ अ कम्युनिटी, ठीक है। अगर हम सोचो कि किसी कम्युनिटी का जो यूज है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, मान लो कि मुझे लगता है मुझे घर बनाना है, ठीक है, तो घर बनाने के लिए मुझे ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, तो ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। ब्रिक्स पहले से महंगी हो गई, सीमेंट पहले से महंगा हो गया, ठीक है, स्टील पहले से महंगा हो गया, मैं कहूंगा अभी तो ऑलरेडी मैं घर में रह ही रहा हूं तो कौन सा इमरजेंसी है, जब सस्ता आएगा तो ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन कम्युनिटी के यूज को मैं पोस्टपोन कर सकता हूं, मतलब अगर उनका प्राइस चेंज हुआ तो मैं उनकी डिमांड कम कर सकता हूं, तो क्या होगा उस केस के अंदर, डिमांड जो है वो जो प्राइस चेंज होगा, मैं कहता हूं रहने दो बाद में डिमांड कर लेंगे, तो डिमांड में चेंज करा सकता हूं, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। नंबर 2, अगर एक कमोडिटी ऐसी है जिसके यूज को आप फ्यूचर पे पोस्टपोन नहीं कर सकते, मतलब उसका रेट जितना मर्जी चेंज हो जाए आपको उसको अभी के अभी कंज्यूम करना ही पड़ेगा, तो क्या होगा, प्राइस चेंज होगा, आप डिमांड चेंज नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, अगर आप डिमांड ही चेंज नहीं करा पाएंगे तो डिमांड में चेंज आना नहीं है, मतलब डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि वीट महंगा हो गया, तो मैं क्या सोचूंगा, मैं अच्छा वीट महंगा हो गया, कोई बात नहीं, आज परांठे नहीं खाते, 2 दिन के बाद खा लूंगा, अब चाहे वीट जितना मर्जी महंगा हो जाए, मैं अपना जो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर है उसके यूज को मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता। ये नहीं है कि चलो ठीक है वीट महंगा हो गया, राइस महंगे हो गए हैं, ठीक है, मिल्क महंगा हो गया, तो आज यूज नहीं करते बाद में यूज कर लेंगे, तो हम उसको तो पोस्टपोन नहीं कर सकते ना। तो अगर हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, इन दैट केस क्या होगा, डिमांड उसकी कम हम नहीं करा सकते, डिमांड कम नहीं होगी तो क्या होगा, डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक हो जाएगी। सो दीज आर द फैक्टर्स जो क्या करते हैं किसी भी कम्युनिटी की इलास्टिसिटी जो है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। नेचर ऑफ द कम्युनिटी हो सकता है, उसके डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, टाइम पीरियड हो सकता है, कंज्यूमर की इनकम हो सकती है, कंज्यूमर उस इनकम का कितना प्रोपोर्शन उस कम्युनिटी पे स्पेंड कर रहा है वो हो सकता है, उस कम्युनिटी का प्राइस लेवल हो सकता है, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है, उसका यूज पोस्टपोन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते वो हो सकता है। सो दीस आर द 9 or 10 factors which can influence the price elasticity of demand of a commodity. So this is our last lecture of this chapter. तो इसके अंदर अब हमारा जो काम है वो ये रहेगा कि अब आपने जो भी आपकी बुक आपके पास है उसके अंदर जो भी इसके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं जिनके अंदर आपको परसेंटेज मेथड, नंबर 2 टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से जो भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स आमतौर पे आ जाता है, ठीक हो गया। तो वो प्रैक्टिस आप करेंगे, अगर कोई डाउट हो उनके अंदर तो आप
इनबॉक्स के अंदर उसकी पिक्चर डाल सकते हैं या उसको लिख के डाल सकते हैं, सो मैं उसको सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डील विद द नेक्स्ट चैप्टर। Till then, it's goodbye from my side. All the best. Thank you very much.